Hello students, I Rakesh Chauhan welcome you all in the e-learning classes of physics initiated by Suraj Group of Schools. And today in this video we are going to discuss about Newton's second law of motion. In our previous video we have discussed about Newton's first law of motion, and we have also defined the force using the concept of Newton's first law of motion. So here we are going to discuss about Newton's second law of motion. Newton's second law of motion. So first we are going to have the statement of Newton's second law, and thereafter we will try to understand that what is Newton's second law of motion. But first we are going to write down its statement. So according to Newton's second law of motion, the external force applied on an object is directly proportional to the rate of change of its linear momentum. Okay, so if I try to write this statement in mathematical form, so we can write down that external force is directly proportional to the rate of change of linear momentum. So here dp upon dt is the rate of change of linear momentum, as we have discussed that p is linear momentum, mass into velocity, and this F external is the external force applied on an body. Okay, so now let us try to understand or try to go into detail of this statement, that how we can say that this is true. For example, if I take a car and a truck moving with same velocity, and if I ask you that in which more force is required to stop the truck as well as car, so you will say we will require more force to stop the truck as compared to stop the car. Why? Because the truck is having more initial momentum as compared to the car, because the mass of the truck is far more than a car. So since the mass of the truck is more, therefore the velocity, or we can say the momentum of the truck is higher, because velocity is same, although since the mass of the truck is more, therefore the momentum or initial momentum of the truck will be more, and the final momentum is same, that is 0, because both have to stop, car as well as truck. So change in momentum किस में ज़्यादा है? तो चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम अगर मैं बात करूं तो ट्रक का ज़्यादा है. तो चेंज इन मोमेंटम और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जितना ज़्यादा होगा, एक्सटर्नल फोर्स हमें उतना ही लगाना पड़ेगा. सेम केस में आप इस तरीके से भी इसको समझ सकते हो कि सपोज एक कार है और एक ट्रक है और वो रेस्ट पोजीशन पर है और उनको एक पर्टिकुलर वेलोसिटी तक पहुंचाना है. सपोज दोनों को 50 मीटर तो ज़्यादा हो जाएगा, खैर 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से सपोज हम उसको पहुंचाना चाह रहे हैं दोनों ऑब्जेक्ट को, तो किस में ज़्यादा फोर्स लगाने की ज़रूरत है? तो किस में ज़्यादा लीनियर मोमेंटम चेंज हो रहा है? अगर मैं टाइम इंटरवल को फिक्स कर दूं तो आप कहेंगे ट्रक का जो लीनियर मोमेंटम है वो डेफिनेटली हमें ज़्यादा चेंज कराना पड़ेगा, क्योंकि रेस्ट पोजीशन से और उस वेलोसिटी तक पहुंचाने में डेफिनेटली, क्योंकि मास ज़्यादा है ट्रक का, इस वजह से जो मोमेंटम में चेंज होगा
वो डेफिनेटली ट्रक का ज़्यादा होगा। इसलिए ट्रक के केस में हमें ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी सेम वेलोसिटी तक पहुंचाने में एज कंपेयर टू कार। सो यहाँ से ये चीज़ क्लियर हो गई कि अगर हैवी बॉडी है तो उसका मोमेंटम ज़्यादा होगा, मतलब उसको स्पीड अप करने में या स्पीड डाउन करने में हमें ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी, या उसका मोमेंटम चेंज करने में हमें ज़्यादा फोर्स की ज़रूरत पड़ेगी एज कंपेयर टू लाइटर ऑब्जेक्ट। सो दैट्स वाई दिस लॉ होल्ड्स दैट एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। जितना ज़्यादा लीनियर मोमेंटम चेंज होगा, जितना ज़्यादा लीनियर मोमेंटम हमें चेंज करना होगा, हमें उतना ही एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी के साइन को इक्वलिटी के साइन में चेंज अगर मैं करूँ तो इसको लिखा जा सकता है एफ एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू के टाइम्स डी पी अपॉन डी टी, वेयर के इज ए कॉन्स्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी although the value of k is going to be 1 in MKS as well as CGS system. So if I put the value of k is equals to 1, so F external comes out to be dP upon dt. So suppose this is equation first and this is equation second. Now we know that the linear momentum of the system is P is equals to mass into velocity. So if I put the value of linear momentum into this equation, so from equation second what can be written? From equation second, external force is equals to d upon dt of p, that is mass into velocity. क्या बॉडी का मास चेंज हो रहा है? तो नॉर्मली मास को हम कांस्टेंट लेते हैं, तो इसको हम डिफरेंशिएशन से बाहर ले सकते हैं। तो मास को बाहर लिया तो ये बन गया dv अपॉन dt और दिस इज f एक्सटर्नल। ये फार्मूला भी हमें याद रखना है, कुछ न्यूमेरिकल्स में हमें इसको भी काम में लेंगे, हालांकि अभी हम स्टैंडर्ड रिजल्ट तक नहीं पहुंचे हैं। व्हाट इज dv अपॉन dt? सो यू विल से इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नोन एज एक्सेलरेशन। सो f एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो दिस इज हाउ और वी कैन डिराइव दिस फार्मूला f इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर m किसी ऑब्जेक्ट का मास है और उसको a एक्सेलरेशन हमें प्रोवाइड करना है, तो हमें इतना फोर्स उस पर अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाकर वो a एक्सेलरेशन अचीव कर पाएगा। या अगर a एक्सेलरेशन से कोई बॉडी चल रही है तो हमें उसको रोकने के लिए इतना एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके वो बॉडी रेस्ट पोजिशन में आएगी। सो दिस इज न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट, ये स्टेटमेंट आपको समझ आया होगा, और ये जो फॉर्मूला है ये भी आपको याद रखना है। कई बार अगर हम IIT और नीट के क्वेश्चंस की बात करें तो उसमें कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी भी होती हैं जिसमें ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी भी चेंज होती है और उसके साथ साथ उसका मास भी चेंज हो रहा होता है। तो उस केस में हम मास को कांस्टेंट नहीं लेते हैं, मतलब ये फार्मूला यूज़ नहीं करेंगे, और उस समय थोड़ा सा चेंज हम यहाँ पर कर दे जाएगा, और इसमें एक फार्मूला हम लगाएंगे डिफरेंशिएशन ऑफ a एंड b और x एंड y। सो अगर हमारे पास दो वेरिएबल हैं तो इसको हम क्या करते हैं, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, इसको सेकंड फंक्शन मान लेते हैं। सो एक बार फर्स्ट फंक्शन को कांस्टेंट रखते हैं, सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं, और दूसरी बार सेकंड फंक्शन को कांस्टेंट मानते हैं, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करते हैं। जैसे कि यहाँ मैं लिख सकता हूँ फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। तो इस फार्मूले की हेल्प से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। f एक्सटर्नल इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन दैट इज मास dv अपॉन dt प्लस सेकंड फंक्शन दैट इज वेलोसिटी एंड dm अपॉन dt. So dv upon dt, rate of change of velocity, and rate of change of mass will be given to you. So you can use this formula to calculate the value of force required. ये फार्मूला बन जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन प्लस v dm अपॉन dt। और अगर मैं वापस से मास को कांस्टेंट ले लेता हूँ
तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मास विद रिस्पेक्ट टू टाइम जीरो हो जाएगा, मतलब ये टर्म जीरो हो जाएगी और वापस से एफ एक्सटर्नल इज इक्वल टू एम में आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है और ये उसका एक स्पेशल केस है जबकि हम मास को कांस्टेंट अज्यूम करते हैं। सो दिस इज अबाउट न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। इस पर न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, लेकिन इससे पहले हम न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे और न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन is based upon law of conservation of linear momentum. Therefore, first we will discuss what is law of conservation of linear momentum. So let us discuss law of conservation of linear momentum. So first we will write down its statement and thereafter we will prove that. So according to law of conservation of linear momentum, according to this law, in the absence of force, in the absence of external force, the total external force, the total linear momentum, of an isolated system means the system which has no impact of its surrounding, which is actually we can say separate from other effects. So the total linear momentum of an isolated system is always conserved or constant. We can say conserved or constant means the total momentum, if I write it mathematically, the total momentum of the system is always going to be constant. और इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, अगर किसी सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट है मतलब चेंज इन मोमेंटम जीरो है, सो हम लिख सकते हैं चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू जीरो। और चेंज इन मोमेंटम की अगर मैं बात कर रहा हूं तो इसको हम लिखेंगे फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम जीरो के इक्वल होगा। और अगर ऐसा लिख रहे हैं तो इसको लिखा जा सकता है पी एफ इज इक्वल टू पी आई, मतलब फाइनल मोमेंटम इज इक्वल्स टू इनिशियल मोमेंटम। तो ये कई फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं, ये सभी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को बताते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये किस तरीके से होल्ड करता है या ये लॉ किस तरीके से वैलिड है। तो जैसा कि हमने न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में पढ़ा कि एफ एक्सटर्नल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इज इक्वल्स टू रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम। मतलब किसी भी बॉडी का अगर हम मोमेंटम चेंज करना चाह रहे हैं, लीनियर मोमेंटम चेंज करना चाह रहे हैं, वी हैव टू अप्लाई द फोर्स। विदाउट एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स द मोमेंटम ऑफ एनी बॉडी कैन नॉट बी चेंज्ड। तो अगर हमने कोई फोर्स ही अप्लाई नहीं किया है, जैसे कि हमने पहली लाइन में ये लिखा है इन द अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, मीन्स अगर एक्सटर्नल फोर्स अब्सेंट है तो उस बॉडी का जो मोमेंटम है वो चेंज नहीं हो सकता। और अगर बॉडी का मोमेंटम चेंज नहीं हो सकता मतलब टोटल मोमेंटम उस बॉडी का, उस सिस्टम का हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो ये स्टेटमेंट इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं। लेट अस ट्राई टू प्रूव दिस with the help of Newton's second law. So now we are going to prove this using Newton's second law of motion. Newton's second law of motion, what can be written? You will say F external is equals to rate of change of linear momentum. Here if I ask you that what is the condition for law of conservation of linear momentum, so you will say F external is equals to 0.
So if external force is absent, then F external will be 0. And from this equation, if I put F external is equal to 0, so 0 is equals to dP upon dt. And if I multiply this dt by 0, then you will say dP will be 0. So dP is what? Change in momentum is equals to 0. Means momentum is equal to constant. So यहाँ से हम लिख सकते हैं momentum is equals to constant. And this is what is law of conservation of linear momentum. So with the help of Newton's second law, you can easily prove the law of conservation of linear momentum. Okay. So if I ask you that if P is constant, then definitely delta P, change in momentum, will be 0. And change in momentum I have written here as final momentum minus initial momentum. So that should be equal to 0. And from here, PF is equals to PI. Final momentum is equals to initial momentum. So if the initial momentum of a body is suppose m1 u1 and the final momentum is m2 u, in place of, you can write down m1 v1 is equals to m2 v2. So this is the initial momentum suppose, and this is final momentum. So we can say, we can write this law of conservation of linear momentum in numerous forms. So P is equal to constant, delta P is equal to 0, PF minus PI is equal to 0, PF is equal to PI, or M1 V1 is equals to M2 V2. This is also the law of conservation of linear momentum. So in our next video, we are going to use this law of conservation of linear momentum to prove Newton's third law of motion. So thank you very much for watching this video.